Okay, so we'll talk about a few questions and their solutions. So, the basic questions will not be talked about here from your assignment number 5. So, let's take a look at question number 5. Okay, first let's take. So, question number 5 says that you have NaI, which is 0.5% of iodized salt. Okay, a person consumes 3 grams of salt. Salt consumed is 3 gram per day. Then the number of iodide ions in the body is, number of I minus is asked. So what you do is you find out the amount of NaI. So NaI is 0.5% of 3 gram because the salt is 3 gram. So 0.5% of 3, 0.5 into 100 into 3. So that will give you 1.5 by 100 grams of NaI. Since you are asked the number and this is mass of NaI, you find out the moles of NaI. The moles of NaI are given mass, that is 1.5. Let's correct this. 1.5 by 100 given mass upon molar mass. The molar mass of NaI will come out to be 150. So this will be equal to 10 to the power minus 4 moles. And once you have moles of NaI, so since 1 NaI has 1 I minus, therefore 10 to the power minus 4 mole NaI will also have 10 to the power minus 4 mole I negative. And once you have moles, your number of I negative will be equal to moles, that is 10 to the power minus 4 into 6.022 into 10 to the power 23. That will be 6.022 into 10 to the power 19, and that is your answer. Okay, so this is for question number 5. Now let's move to another question. This is question number 6. So what does the question say? The question says that the molar mass of the compound is to be found if you have 0.372 mole. So 0.372 mole weigh how much? 186 gram. This is given to you. So these are moles. This is your given mass and you have to find moles. तो मोल्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने? मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो ये तो पता करना है और मोल्स की वैल्यू अपने को दी हुई है 0.372. तो मोलर मास इज 186 अपॉन 0.372. इसको सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 500 grams. So this is your answer for question number 6. Next we have question number 7. So what does the question number 7 say? ठीक है, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? Which of the following has maximum number of carbon atoms? तो क्या करना है? सबके मोल्स निकालने हैं और मोल्स निकाल के मॉलिक्यूल्स के उसको नंबर ऑफ कार्बन से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, जैसे पहला दिया है 4.4 ग्राम ऑफ CO2, तो इसके मोल्स निकालोगे तो आएंगे गिवन मास बाय मोलर मास. तो 0.1 मोल CO2 आ गया. अब सिंस 1 CO2 हैज़ 1 कार्बन, therefore 0.1 mole
CO2 will have 0.1 मोल कार्बन। ठीक है, अब इसी तरीके से बाकियों में करना है, अपन स्टेप्स कम लिखेंगे। ये पहला ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन आपका है, कितना दिया हुआ है, 3 ग्राम्स, तो 3 ग्राम्स ऑफ C2H6, तो मोल्स ऑफ C2H6 आ जाएंगे 3/30, 0.1। और क्योंकि एक C2H6 में 2 कार्बन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन जो है वो डबल हो जाएंगे। मोल्स ऑफ कार्बन विल भी 0.2, इसके डबल। ठीक है, ये स्टेप मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसके जैसे लिखोगे तो आ जाएगा। थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है कि 4.4 ग्राम ऑफ C3H8, तो मोल्स ऑफ C3H8 निकालोगे आप तो वो आएगा गिवन मास बाय मोलर मास C3H का 44 है 0.1 मोल। अब C3H8 में 3 कार्बन है, तो एक C3H8 में 3 है, तो 0.1 मोल C3H8 में मोल्स ऑफ कार्बन उसके 3 टाइम हो जाएंगे 0.3 मोल, और यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगले ऑप्शन को सॉल्व करोगे आप तो उसमें 0.1 मोल ही आएगा। So that is why this is your answer. Next, what we'll move on to is question number 8. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी लगभग ऐसा ही है, थोड़ा सिमिलर कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 20 ग्राम कैल्शियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन, सारे ऑप्शन में आपको नंबर ऑफ एटम निकालने पड़ेंगे। तो 20 ग्राम कैल्शियम में मोल्स आएंगे 20/40 और नंबर ऑफ एटम आएंगे 20/40 इंटू Na, यानी कि Na/2, इतने आ गए। अब आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं, तो सारे ऑप्शन चेक एक एक करने की जगह मैं आपको एक चेक करके बता देता हूँ और फिर आप बाकी सारे ऑप्शन चेक कर सकोगे उसी प्रोसेस से। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस है। अब जैसे अपन ऑप्शन सी देख लेते हैं। ठीक है, आपको दिया है 1.8 ग्राम्स ऑफ H2O, तो पहले मोल्स निकालो H2O के, तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये तो मोल्स आ गए। कितने मोल आ गए, 0.1 या 1/10 मोल्स किसके, H2O के आए हैं, लेकिन चाहिए किसके, एटम्स के। तो 1 H2O हैज़ हाउ मेनी, 3 एटम्स। तो क्योंकि 3 एटम हैं एक H2O के पास, देयरफॉर 1/10 मोल H2O will have 3/10 मोल एटम्स, और एटम्स के मोल आ गए तो नंबर क्या आएगा, 3/10 इंटू Na। तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, ये 3/10 इंटू N और Na/2, तो दिस इज़ नॉट मैचिंग। ओके, ये मैच नहीं कर रहा है, तो मैं आपको एक सॉल्व और करके और बता देता हूँ, देखते हैं शायद ये मैच कर जाए। लेट्स टेक एज ऑप्शन बी, इसको चेक करते हैं। तो आपके पास है 1.6 ग्राम CH4, इसको मैं थोड़े कम स्टेप्स में करूँगा। मोल्स आएंगे CH4 के, मोल्स ऑफ CH4 इज गिवन मास बाय मोलर मास 0.1 या 1/10। 1 CH4 has 5 atoms, therefore 1/10 mole CH4 will have 5/10 mole atoms, which gives you 1/2 into Na number of atoms, and that will be your आंसर, क्योंकि इसके नंबर Na/2 और इसके नंबर Na/2 मैच कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8। ऑल राइट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ वाटर वेपर्स एट NTP। तो बेटा ये तो सिंपल है, कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे डाउट, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, वॉल्यूम इज़ 1 ml या 1/1000 लीटर्स।
तो मोल्स कितने आएंगे, मोल्स इज गिवन वॉल्यूम 1/1000 अपॉन 22.4, तो यह आ जाएगा 1/22400 मोल्स। अब क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर इज इक्वल्स टू मोल्स इंटू Na, तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 22400। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आपको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और इसके सिवा कोई क्वेश्चन अपन को लगता है क्या करने लायक? यहाँ तक तो ठीक है, और देख लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन अपने पास होता है तो। क्वेश्चन नंबर सारे रीड कर लेता हूँ मैं एक बार, अगर कोई लगेगा तो अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए एक बार। लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12 फॉर यू गाइस। हाँ, सो व्हाट इट सेज इज कि सैम्पल ऑफ CuSO4.5H2, ठीक है, CuSO4.5H2O है और उसमें 3.782 ग्राम ऑफ कॉपर है। तो ऑक्सीजन का ग्राम मास कितना है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है ये पूछा है। तो बेटा इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस लॉजिक से करना चाहते हैं। आप लोगों को एक तरीका तो आपके सॉल्यूशन में दिया हुआ है, उसी को मैं समझा देता हूँ आपको कि कैसे होगा। बहुत सिंपल सी बात है। एक CuSO4.5H2O की अगर अपन बात करें तो उसमें एक कॉपर है और ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 4 तो ये हैं और 5 × 1 5 ऑक्सीजन ये हैं, तो 9 ऑक्सीजन है। तो एक कॉपर का जो वज़न आता है वो आता है 63.5 ग्राम, ठीक है, ये इसका मास होता है। एक ऑक्सीजन का वज़न जो आएगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, वो आएगा 16 ग्राम। तो कॉपर अपॉन ऑक्सीजन, एक कॉपर 63.5 ग्राम और 9 ऑक्सीजन है ना, 9 ऑक्सीजन अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 9 × 16 ग्राम, तो आएगा 9 × 16 ग्राम। ये कॉपर और ऑक्सीजन के वेट का रेशो आएगा। अभी तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉपर जो है वो है 3.782, तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो इसको सॉल्व कर दो, है ना, अपन ये बीच वाला पार्ट हटा देते हैं। इफ़ यू सॉल्व दिस तो मास ऑफ ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 9 × 16 × 3.782 अपॉन 63.5। बस इसको आप सॉल्व कर दो तो विल गेट द मास ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज़ वन वे। और भी तरीके हैं, मोल्स वगैरह निकाल के आप कर सकते हो, बट आई थिंक दिस विल बी द क्विकेस्ट ऑफ देम ऑल। तो ठीक है बेटा, आई थिंक ये क्वेश्चंस में ज़्यादा डाउट थे, तो आई होप दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द वे यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, and we'll keep doing this exercise in future as well.